Hello everyone, in the video series today we are going to start our first lesson, which is Volodya and me. This is a story which is written by Leo Tolstoy. Before we will start this lesson, we will know about the author of this story. Leo Tolstoy was a Russian author. He was born in Moscow in 1828. He was a prolific novelist. He wrote many novels like Anna Karenina and War and Peace. War and Peace is a popular novel by Leo Tolstoy. Dear students, this story was written in Russian language. After then, this story was translated into English from Russian language by the C.J. Hacker. Dear students, let's come to know about the story. In this story, a little boy who narrates the story, whose name was Nicky. The narrator narrates in the story about his elder brother. His elder brother has many good qualities and the narrator has some bad qualities. So the narrator compare his qualities to his elder brother. Okay, how to fought each other and how to met each other in the end of the story. Okay, let's come to know and listen me carefully. Okay, let's start the chapter. I was only a year and some months younger than Volodya. We were quite close. We grew up, studied and played together. No distinction of elder and younger was made between us. But just about the time I am speaking of, I began to realize that I was no companion for him, either in age, in interest or in ability. इस स्टोरी में नरेटर जिसका नाम निकी है वो बता रहा है कि उसके भाई की जो एज है उसमें जो डिफरेंस है वो 1.5 मंथ का है. ओके, वे दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ एक ही क्लास में पढ़े, साथ एक साथ पढ़े हो. ओके, बट फिर भी उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस था. It even seemed to me that Volodya himself was aware of his superiority and was proud of it. हालांकि जो वलोदिया था उसका एल्डर ब्रदर, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो उससे सुपीरियर था. दिस आइडिया हैज़ बीन was inspired by me. Vanity which suffered every time I came to contact with him. He was better than me in everything, at lesson, in arguments and in manners, and all this took me farther from him and caused me more anguish which I could not understand. In this passage, the narrator compare his qualities to his elder brother. इसमें नरेटर बताता है कि जो उसका एल्डर ब्रदर है वो उससे बहुत अच्छा है. वह लेसन लर्न करने में अच्छा है, आर्ग्यूमेंट में अच्छा है और वो हर एक चीज़ में उससे अच्छा है, जिससे वो जेलियस होता है. अपने एल्डर ब्रदर से नरेटर जेलियस फील करता है. When Volodya was given a tucked linen shirt for the first time, I was unhappy for the not having a shirt like that. जब वलोदिया को पहली बार लिनेन की शर्ट मिली तो जो नरेटर है उससे जेलस हो गया क्योंकि उसके पास वैसी लिनेन शर्ट नहीं थी. आई एम श्योर आई वुड हैव फेल्ट हैप्पियर इफ आई वाज कन्विंस्ड दैट एवरी टाइम ही अरेंज्ड हिज कॉलर इट वाज नॉट डन बाय टू एनॉय मी. मुझे विश्वास था और मुझे खुशी थी कि हर टाइम वो अपनी कॉलर को सही करता रहता, जो मुझे दुखी नहीं कर पाए. What tormented me most was that it sometimes seemed to me Volodya understood what was going on inside me, but tried to hide it. But perhaps my sensitiveness and tendency to analyze deceived me in case it may be Volodya did not feel at all as I did. वलोदिया हालांकि इन चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता था, ऐसा नरेटर समझता है
उसकी सेंसिटिविटी के बारे में, उसकी उत्तेजना के बारे में और उसकी टेंडेंसी के बारे में, उसकी प्रवाह के बारे में. He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. He would suddenly develop a passion for pictures, himself to take painting, spend all his money buying them and beg them of his drawing master or papa and grandma. Then it would be a craze for curious to decorate his table, collecting them from every room in the house, or a mania for novels which he obtained on the sly and read all the day and night. I could not help being impressed by his hobbies, but I was too proud to imitate him and too young and not independent enough to choose a hobby for myself. In this paragraph, the narrator describes about his elder brother. He describes his qualities. He has some good qualities like that. जो नरेटर है उसका बड़ा भाई, उसको कुछ अच्छी क्वालिटीज है उसके अंदर, जैसे कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा है, उसको पिक्चर बनाने का बहुत अच्छा शौक है, वो हर एक समय अपने जो पॉकेट मनी थी उसको चीज़ों को खरीदने में लगाता रहता था, और वो यहाँ तक कि पापा और ग्रैंड माँ से भी बेगिंग करने में भी हिचकिचाहट नहीं करता था. वो पापा और ग्रैंड माँ से भी पैसे उधार ले लेता था, उनसे भी मांग लेता था, बोरो कर लेता था, और उसको नोवेल पढ़ने का भी बहुत अच्छा शौक हो गया था. ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, but there was nothing I envied so much as Volodya's happy large-heartedness, which showed itself most strongly when we quarreled. I was felt that he was behaving well, but I could not do likewise. Once when his passion for ornaments was at its height, I went up to his table and accidentally broke an empty, bright-colored little scent bottle. इसमें नेटर बता रहा है कि वोलोदिया के अंदर कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जैसे कि वो लार्ज हार्टेडनेस था. कभी कभी हम दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था, हम दोनों आपस में झगड़ा भी करते थे. एक बार वोलोदिया को ऑर्नामेंट्स, गहनों को कलेक्ट करने का शौक हो गया, तो एक दिन एक्सीडेंटली दुर्घटनावश उसकी टेबल के ऊपर रखा हुआ सेंट का बोतल मेरे से टूट गया. After then, who asked you to touch my things? Demanded Volodya, coming into the room and seeing how I had upset the symmetry of the different treasure on his table, and where the scent bottle you must have. जैसे ही उसकी सेंट की बोतल टूट गई तो वो मेरे से बोलता है, Who asked you to touch my things? तुम्हें मेरी चीज़ों को छूने के लिए किससे पूछा तुमने? I knocked it over by accident and it broke. What does it matter? नरेटर बोलता है कि वो एक्सीडेंटली मेरे से उसकी टक्कर हो गई और वो टूट गई, तो क्या हो गया? Do me the favor, never dare touch my things again, he said. वोलोदिया कहता है कि तुम्हारी फिर से मेरी चीज़ों को छूने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए. Putting the pieces of the broken flask together and looking at them sorrowfully, टूटे हुए सेंट के बोतल के टुकड़ों को वापस फ्लास्क में रखते हुए बड़े दुखी मन से, एंड यू प्लीज डोंट इश्यू ऑर्डर, आई रिटोर्टेड. मैंने उसको कहा कि प्लीज इसका कोई बहुत बड़ा इश्यू मत बनाओ. दैट्स ऑल, जो भी हो. एंड आई स्माइल्ड, और मैं अपने एल्डर ब्रदर की तरफ मुस्कुराया. दो आई डिड नॉट फील इन द लिस्ट लाइक स्माइलिंग, हालांकि मेरी जो स्माइल थी वो सिर्फ कुछ मात्र थी. यस, इट्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, परस्यू Volodya, jerking his shoulder, a gesture he had inherited from Papa. He goes and breaks it and then laughs, the nasty little brat. Yes, it's nothing to you, but it doesn't matter me, pursue Volodya. वोलोदिया ने
उसको बोला कि कोई बात नहीं, जो भी हो गया। जर्किंग हिज शोल्डर, अपने शोल्डर को झटका लगाते हुए। ए गेस्चर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा, एक गेस्चर है जो उसको उसके पापा से मिला था। आई एम ए लिटिल ब्रेड एंड यू आर ए बिग बट यू आर स्टूपिड, द नरेटर टोल्ड टू हिम, उसको बताया कि आई एम ए लिटिल ब्रेड, मैं आपसे कम बुरा हूँ, एंड यू आर बिग, और आप बड़े हो, बट यू आर स्टूपिड, और आप स्टूपिड हो। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेल विथ यू, सेड बुलोदिया, बुलोदिया ने कहा कि मैं आपसे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। गिव मी ए स्लाइट पुश, उसने मेरे को थोड़ा सा पुश किया, धक्का दिया। गो अवे, यहाँ से जाओ। डोंट पुश, गेट अवे, डोंट पुश आई टेल यू, मुझे धक्का मत मारो, गेट अवे, यहाँ से जाओ। डोंट पुश आई टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पुश मत करो। बुलोदिया टुक माई वर्ड एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल, वलोदिया ने एक ऐसी स्पीड से, ऐसी भावना से मुझे ड्रैग करने की कोशिश की उस टेबल से, उस टेबल को ड्रैग मतलब खींचने की कोशिश की। बट आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ बाई नाउ, लेकिन मैं अपनी तरफ खड़ा हुआ था। आई गोट होल्ड ऑफ द लेग ऑफ द टेबल एंड टिप इट ओवर, और मैंने भी उस टेबल के लेग को पकड़ के उसको अपनी तरफ उठाया। देयर नाउ एंड ऑल हिज चाइना एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स क्रैश्ड टू फ्लावर, और जो भी उसके ऊपर फ्लावर, जो भी पॉट्स रखे हुए थे और जो भी ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, सारे नीचे गिर के क्रैश हो गए, टूट गए। यू डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय, क्राइड बुलोदिया, ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज falling treasure. Well, now it's all over between us. I thought I felt the room. We have quarreled for good. As soon as afternoon lessons were over, I left the room. I was too scared, uncomfortable, and ashamed to be alone with my brother. After our history lesson in the evening, I took my exercise book and started towards the door. I passed Bulodia, though I wanted to go up to him and make friends. I scolded and put on the angry expression. At that moment, Bulodia raised his head and with the meaningful smile looked me full in the face. Our eyes met and I knew that he understood me, but some irresistible feelings made me turn away. In this paragraph, the narrator narrates that, नरेटर यहाँ पे नरेटिंग करता बताता है कि कैसे हम दोनों में झगड़ा हुआ। तो मैंने गुस्से से वो रूम छोड़ दिया और मैं बहुत डरा हुआ भी था, अनकम्फर्टेबल था, शर्मिंदा था, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था अपने भाई के साथ। और हमारा हिस्ट्री का लेसन भी था इवनिंग में, और मैंने अपनी बुक की जो भी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट कर ली थी। जैसे ही मैं बुलोदिया के पास से गुजरा, मैं उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहता था। उस समय और बुलोदिया ने मेरी तरफ गर्दन उठाई और एक स्माइल की मेरी तरफ वो मुस्कुराया। निक्की, ही सेड इन अ मोस्ट नेचुरल वॉइस विदाउट ए स्क्रैप ऑफ पैथोस। उसने बिल्कुल जैसे वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हो, उसने मेरे को बोला निक्की। निक्की इज़ द नेम ऑफ नरेटर। उसने मेरे को बोला निक्की, एक दबी हुई आवाज़ में, अपनी आवाज़ में बोला, डोंट बी क्रॉस एनी मोर, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इफ़ आई ऑफेंड यू, यदि मैंने आपको ऑफेंड किया हो तो। एंड ही हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ ऊपर किया। Something that come higher and higher seemed to be pressing my chest and stopping my breath, but this only lasted a second. Something that came higher and higher seemed to be pressing my chest. मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेस्ट को कोई और ज़्यादा प्रेस कर रहा है, दबा रहा है। एंड स्टॉपिंग माई ब्रेथ, और मेरी ब्रेथ को, मेरी सांसों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए था। टीयर्स केम टू माई आईज एंड आई फेल्ट बेटर। मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैंने कुछ अच्छा महसूस किया। फॉरगिव मी बुलोदिया, आई स्टेमर्ड।
स्क्वीजिंग हिज हैंड, उसके हाथ को दबाते हुए मैंने अपने एल्डर ब्रदर वोलोदिया को बोला मुझे माफ़ कर दो। वोलोदिया लुक्ड एट मी, वोलोदिया ने मेरी ओर देखा, एज इफ ही कुड नॉट मेक आउट एट ऑल वाई देयर शुड बी टीयर्स इन माई आईज, जैसे कि वाई देयर शुड बी टीयर्स इन माई आईज, कि मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, in the end of the story, the narrator realized that his brother has good qualities and he has no guiltiness against him. Okay, I hope you can understand the main theme of the story. Dear students, you should have the dictionary to find out the hard words. Okay, in the next video we will discuss about the exercise of this lesson. Till then, read this story again and again and try to understand the theme of the story. Thank you and have a nice day.